Hello everyone, welcome to the class. In today's class, we'll be solving question number 36 of the chapter Retirement of a Partner. It's a comprehensive problem and this problem is given on page number 6.60 of the book T.S. Garewal 2020 edition. The problem is like there are three partners X, Y, and Z. They were sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. The balance sheet shows creditors at rupees 24,140. Capital accounts are also given. Then on the asset side, we have cash at bank, debtors, less provision, stock, plant and machinery, land and building, and Y's loan account. Y's loan account, this is one of the partner, and the Y has here you can say that Y is like our debtor. Fine. That means the Y's loan account here has a debit balance, means that it is just like a debtor for the firm, and we'll see how we are going to treat it. Now, Y retired on 1st April 2020 after giving due notice. Following adjustments in the books of the firms were agreed. Land and building appreciated by 10%. Provision for doubtful debt is no longer necessary since all debtors are good. So this 105 provision is not at all required. Stock is appreciated by 20%. Adjustments be made in the accounts to rectify a mistake previously committed, whereby Y was credited in excess by 810 while X and Z were debited in excess by 420 and 390 respectively. Now, goodwill of the firm is valued at 5,400 and Y's share of the same be adjusted to the capital accounts of X and Z, who were going to share the future profits in the ratio of 2:1. So new profit sharing ratio is given, old ratio is also given. So we need to calculate the gaining ratio 2 for the purpose of self-generated goodwill. It was decided that X and Y to settle Y's account immediately on his retirement. Now we have to prepare revaluation account, partners capital account, and the balance sheet of the firm after retirement, after Y's retirement. So let's see how we are going to solve this problem. So as we saw that three partners X, Y, and Z were there, and they were previously sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. So this was their old ratio, and the new ratio is between after Y's retirement, the new ratio between X and Z was 2:1. This is the new ratio. So if I'll calculate the gaining ratio, the formula for calculating gaining ratio is new ratio minus old ratio. So for X, new ratio is 2/3 and old ratio is 4/9. So if I'm going to solve it, LCM is 9, 3 to the 6 minus 4, which is equal to 2/9. So X is gaining 2/9 share. Then Z, new ratio is 1/3. Old ratio was 2/9. So again, the LCM is 9. Then 3 minus 2, it is equal to 1/9. So the gaining ratio between X and Z, gaining ratio between X and Z for the purpose of goodwill is 2:1. For the purpose of the calculation of goodwill is 2:1. See, in the adjustment number E, it's mentioned that the goodwill of the firm is valued at goodwill of the firm
is valued at rupees 5400 and this has to be adjusted. So retiring partner goodwill of the firm is valued at 5400 and Y's share of goodwill will be, no, Y is the retiring partner and his share was, see, this was 5400 for the goodwill and he is retiring by 3/9 share. So if I'm going to solve it, I'm going to get 1800 as the value of goodwill, and this 1800 who will give? X and Z, fine. X and Z will give 1800 goodwill. Now in which ratio? Obviously gaining ratio, and the gaining ratio we have calculated between X and Z is 2:1. So if I'm going to pass the journal entry for the treatment of goodwill, it will be X capital account, X और Z देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना. X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं, ये दोनों देंगे गेनिंग रेशियो में 2:1. गेनिंग रेशियो वाज 2:1. किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज Y को 1800 मिलेगा. 1800 डिवाइड बाय 3 इज 600. तो 600 Z देगा और 1200 पार्टनर X देगा. तो X और Z के कैपिटल अकाउंट 1200 600 से डेबिट हो जाएंगे, Y का कैपिटल अकाउंट 1800 से क्रेडिट हो जाएगा. Let's pass the journal entry to record the D adjustment also, where Y's capital account was credited in excess by 810. So Y's capital account is credited in excess. So in order to rectify this error, Y's capital account should be debited. बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Y का कैपिटल अकाउंट ना हमने एरर कमिट कर दिया है और Y के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है इन एक्सेस बाय 810. तो अगर मैंने उसको क्रेडिट कर दिया तो Y के कैपिटल अकाउंट को 810 से अगर डेबिट कर दूंगी तो मेरी एंट्री ठीक हो जाएगी, ये अमाउंट जो है वो ठीक हो जाएगी. अब ये जो एरर था वो कॉम्पनसेटिंग एरर था, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि मैंने द बिजनेस हैज डेबिटेड X and Z account debited in excess by 420 and 390. बेटे 420 और 390 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 810 ही आता है. तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर था. Y का कैपिटल अकाउंट 810 से क्रेडिट किया था, ठीक करने के लिए डेबिट कर देते हैं. और X और Z का कैपिटल अकाउंट, X का कैपिटल अकाउंट और Z का कैपिटल अकाउंट हमने एक्सेस से डेबिट कर दिया था, ठीक करने के लिए 420 से और 390 से रिस्पेक्टिवली दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं. सो बीइंग द रेक्टिफाइंग एंट्री पास. और फिर हम जब कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे. Now let's prepare the revaluation account based on the information given in the question. पहला एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%. और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं. सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, आप देखिए इसकी वैल्यू जो दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की क्वेश्चन में 15,000 दे रखी है और ये एप्रिशिएट हुई 10% से. सो 1500 विल बी द इंक्रीज. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो बी है आपका, वो कह रहा है इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल डेटर्स आर गुड. तो जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो डेबिट साइड पे शो करते हैं. अब जो प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड था हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है तो वी विल ऐड बैक इन दी प्रॉफिट, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रोविजन की अब हमें जरूरत नहीं है. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन मेरा क्रिएटेड था 105 का, तो ये जरूरत नहीं थी. इट इज एडेड बैक इन प्रॉफिट.
stock is appreciated by 20%, स्टॉक भी 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 4800 दी हुई है, और अगर ये 20% से इंक्रीज हो रही है तो आपके स्टॉक में इंक्रीज इज 8 to the 16 1 960 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो वी आर गोइंग टू राइट दिस इंक्रीज ओवर हेयर. 20% ऑफ 4800 इज 960. सो बाय स्टॉक क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 960. So the total of the credit side is 2565, and that means this is the total gain on revaluation. So to gain on revaluation, and this should be transferred to the capital accounts of the partners, that is X, Y and Z in their old profit sharing ratio, and the old profit sharing ratio is 4:3:2. Now if I'm going to take 4/9 share of 2565, I'm going to get 1140. So this gain is to be transferred on the credit side of X capital account. 2565 का 3/9 will be 855, and gain on revaluation Z share is 2565 into 2/9, which is equal to 570. So the revaluation account is complete, and we are going to close it by writing the total on the debit side also, 2565. Now next step is to prepare the partners capital account. We are going to prepare all the partners capital account simultaneously. So the first thing we are going to transfer is their balance brought down in the capital accounts given in the balance sheet, and the amount given in the balance sheet is 12,000, 9,000, 6,000. 12,000, 9,000 and 6,000. Next is we are going to give the treatment of the goodwill. Y is going to get the share of goodwill from X and Z. They were the gaining partners. Y is the sacrificing partner. So we are going to write by X capital account and by Z's capital account for the share of goodwill. His share of goodwill was 1800, 1200 to be given by X and 600 to be given by Z. So we are going to record here to Y's capital account. X का capital account बेटा डेबिट हो जाएगा क्योंकि X दे रहा है 1200 and Y ले रहा है, और Z का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 600 से क्योंकि Z दे रहा है और Y ले रहा है. उसके बाद आ जाते हैं हम बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. गेन ऑन रीवैल्यूएशन था, हमने अमाउंट कैलकुलेट करी थी 1140. X के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 855, Y के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड लास्टली 570 ये Z के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा. फिर एक हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी थी जब हमने एरर कमिट किया था कि X का कैपिटल अकाउंट एक्सेस, Y का कैपिटल अकाउंट एक्सेस में क्रेडिट कर दिया था, तो हम इसको डेबिट कर देंगे. फाइन. और किससे? 2X 2Z, एंड द अमाउंट वाज 420 390. तो ये Y का कैपिटल अकाउंट कम हो गया 810 से. और बाय Y X और Z का कैपिटल अकाउंट एक्सेस में डेबिट हुआ था, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 420 एंड 390.
फाइन, ये एडजस्टमेंट हमने कर दी. Now in the question, Y's loan account 20,000 is also given on the asset side of the balance sheet. That means Y is our debtor. Fine. तो Y से फर्म ने लेना है अमाउंट वापस, तो Y's capital account will be debited to find out that what is the net amount due to Y. अब देखिए Y का लोन अकाउंट का मतलब Y के लोन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है. अब मुझे Y का अगर लोन अकाउंट को क्लोज करना है तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू, आई विल पास द एंट्री Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू Y's लोन अकाउंट. देखिए Y के लोन अकाउंट का डेबिट बैलेंस था तभी एसेट साइड पे दिया हुआ है. अब मैंने इसको क्लोज करने के लिए 20,000 को Y के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि Y का जो अमाउंट ड्यू है उसमें से उसको 20,000 कम मिलेगा क्योंकि Y ने फर्म से लोन लिया हुआ था. तो अब फाइनली जो भी अमाउंट उसकी ड्यू होगी उसमें 20,000 कम हो जाएगा. So to Y's loan account and this amount is 20,000. Now let's balance the capital accounts of the partners. So if we total up the account, the credit side total of X capital account is 13,560 and debit side total is 1,200. तो बेटा अगर मैं 1,200 13,560 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो X की बैलेंसिंग फिगर जो कि बैलेंस शीट में, रिवाइज बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल की, वो आ जाएगी 12,360. ठीक है. Z का भी देख लेते हैं. Z का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 6,960 और डेबिट साइड का टोटल 600 है. और अगर मैं 600 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ फ्रॉम 6,960 तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 6,360. फाइन. ये मैंने सब्ट्रैक्ट जब कर लिया बेटे, अब मेरे पास ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये मैं बैलेंस शीट में शो करूंगी. Y जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, आप देखेंगे कि Y का डेबिट बैलेंस जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20,810 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 11,655. यानी कि Y रिटायरमेंट के टाइम पे 9,155 जो बैलेंसिंग फिगर है 9,155 ये क्रेडिट साइड पर आ रही है. यानी कि Y रिटायरमेंट के टाइम पे इतना कैश बिजनेस को, फर्म को दे के जाएगा. बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि सेटल करके जाना है अकाउंट, Y का अकाउंट हमने सेटल करना है, तो Y इतना कैश फर्म को दे के जाएगा बिकॉज उसके अकाउंट को हमने सेटल करना है. सो वी आर गोइंग टू क्लोज द partners capital account by writing their balances in the total figure, total amount. So 6,960 Z का टोटल आ गया और Y का टोटल 20,810. So with this partners capital accounts are completed. Yes, so on the liability side of the balance sheet, the first item to be recorded are creditors. Creditors में बेटा कोई चेंज नहीं है तो हम इसको as it is 24,140 रिकॉर्ड कर देंगे. Then partners capital account, और कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है. फाइन. इस क्वेश्चन में और तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई तो हम अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स X और Z रह गए हैं, तो X का कैपिटल अकाउंट अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 12,360 और Z का कैपिटल अकाउंट इज 6,360. फाइन. और Y ने तो हमें कैश देना है जब सेटल होगा, तो कैश एट बैंक हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस था 3,300 का और 9,155 का कैश Y
फर्म को दे के जाएगा। फाइन, तो मेरा कैश का बैलेंस हो जाएगा 554 and 9 plus 3 12, so 12,455. next is sundry debtors. अब प्रोविजन तो नील हो गया, प्रोविजन 105 हमने एक्सक्लूड कर दिया था, तो डेटर्स की अमाउंट 3045 we'll record on the asset side because provision is nil now. Then स्टॉक की वैल्यू बेटा हमें 4800 बुक वैल्यू दी हुई है, और अगर आप रिकॉल करो तो स्टॉक हमने एप्रिशिएट किया था बाय 20%, 960। तो अगर मैं इसके टोटल को एड अप करूं तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज 8 plus 9 is 17, 5760. Then the next asset is plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दे रखी है वो दे रखी है 5100 की। फाइन, और इसको भी हमने एप्रिशिएट किया था बाय 10%, सो प्लस 510. सो इफ आई एम गोइंग टू एड इट, इट इज 10, then 5 plus 6 and then 5. next is प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट एसेट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी बुक वैल्यू जो दी हुई थी क्वेश्चन में दैट वाज 15,000। फाइन, और लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने एप्रिशिएट किया था 10% से। नो, लैंड एंड बिल्डिंग को बेटा हमने 10% से एप्रिशिएट किया था। आई थिंक प्लांट एंड मशीनरी वाज द सेम, सो प्लांट एंड मशीनरी हम 5100 ही रिकॉर्ड करेंगे। फाइन, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं था बुक वैल्यू में। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 10% से एप्रिशिएट किया है, सो 1500। सो द वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 16,500। आई थिंक हमने सारे एसेट्स रिकॉर्ड कर दिए, और वाई का लोन तो हमने पे ऑफ ही कर दिया था। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द टोटल ऑन ईच साइड। So if we calculate the total of the balance sheet on the liability side, it is coming out to be 42,860, and on the asset side, again it is 42,860. that means the question which we have done is correct. Let me again recapitulate this amount 9,155. बेटा y इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट एडजस्टमेंट में कि y का अकाउंट हमने सेटल कर देना है। x और z जो पार्टनर्स थे, रिमेनिंग पार्टनर्स, उन्होंने बोला हमने y का अकाउंट सेटल कर देना है, यानी कि y को कुछ देना है तो दे देंगे, उससे कुछ लेना है तो ले लेंगे। और हमने देखा था कि y का, क्योंकि y का लोन अकाउंट था 20,000 था, तो y को देने वाला अमाउंट जो था दैट इज लेस उसके कैपिटल में, उससे लेना ज्यादा था, तो y से अल्टीमेटली मुझे 9,155 लेना था, जो कि कैश में ऐड कर दिया, एंड फाइनली द बैलेंस शीट गेट्स मैच्ड. दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन which we have done is correct. So hope you have understood the solution. That's all for today from my side. Thank you very much.